Hello everyone, in the series of UGC NET 2020 solved questions, in this video we will discuss discrete mathematics questions. Now there were 13 questions from discrete maths, जिसमें से 5 questions आपके propositional logic से थे, 4 questions basic mathematics जो इसमें आते हैं probability and all, and 4 questions tree graph based question है. So सबसे पहले हम tree graph and relation based questions करते हैं. First question is, consider the following statements. Statement 1 is, any tree is 2 colorable. Can we say that chromatic number of any tree is 2? Let us see one example. Let us say this is my tree. Now see जो root है, let us say उसको हमने red color से mark कर दिया. अब इसके दोनों children को we can mark with yellow color, let us say. फिर जो further level है उसको हम again red कर सकते हैं. So level wise हम color को change कर सकते हैं. So yes, any tree can be marked with 2 colors. So statement A is true. Next statement is, a graph G has no cycles of even length if it is bipartite. Whenever you encounter these types of statements, it is best to take one example. Now let us take one bipartite graph. See, on left hand side we have a bipartite graph. Here we have to find the length of a cycle. Okay, we will start from any node. Let us say we are starting from this yellow node. Now we will try to make one cycle and we will calculate its length. 1, 2, 3 and 4. Okay, so we are getting a cycle of even length. Now our statement was, a graph G has no cycle of even length. Okay, now this is incorrect. अभी हमने example से देखा है. Next statement is, a graph G is 2 colorable if it is bipartite. Yes, ये इसकी property होती है, कोई भी आपका bipartite graph है उसका chromatic number 2 होता है. ये आपको इस example में भी दिखाई दे रहा है. एक सेट में हमने ऑरेंज कलर ले लिया है और दूसरे में हमने ब्लू कलर. So statement C is correct. Next statement is, a graph G can be colored with D plus 1 colors if D is the maximum degree of any vertex in the graph. Now ये एक statement है and this is true. ये मैं अभी आपको example से explain करूँगी why. But आपको ये चीज याद रखनी है, जो D plus 1 colors है ये maximum number of colors है, minimum नहीं है. इससे कम आप ले सकते हो, but this one is maximum. Now D is your degree, maximum degree of a graph. Now to see this point, let us take one more example. Now on right hand side, we have a complete graph. Now इस complete graph में maximum degree है 3. That is value of D is 3. So what will be the chromatic number? Now आप बहुत easily देख सकते हो, अगर हमने A को मान लो कलर नंबर 1 से मार्क कर दिया, B को हमें दूसरा कलर देना पड़ेगा, C को any other color और D को भी कोई और कलर. So basically in this example we will need 4 colors, right? So if value of D is 3, then maximum number of colors you need will be D plus 1. So this statement is absolutely right. Last statement is, a graph G can be colored with order of log V colors if it has order of V edges. Now इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सेम हम एग्जांपल लेते हैं. ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है. नाउ इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं आपके पास 4. नंबर ऑफ एजेस इज n into n minus 1 by 2, राइट? ये हम सबको पता है. नाउ अगर हम बिग O के टर्म में निकालते हैं नंबर ऑफ एजेस, इट विल बी बिग ऑफ n स्क्वायर, राइट? नाउ इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं जो पीछे स्टेटमेंट दी हुई है. इफ इट हैज ऑर्डर ऑफ v एजेस, नाउ हमारी एजेस कितनी है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. सो अब इसके लिए हमें कितने कलर्स की जरूरत है ना? क्वेश्चन में गिवन है ऑर्डर ऑफ लॉग v. नाउ दिस इज इनकरेक्ट. नाउ इसमें हमने अभी देखा है, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था कंप्लीट ग्राफ का विद n equals to 4, है 4 कलर्स. नाउ इन दिस यू विल नीड बिग ऑफ n कलर्स रादर देन log v. अगर हम इसमें log में पुट करेंगे, इट यू विल गेट
2 log n. That will be incorrect. So statement E is incorrect. Now options check करते हैं. Option 1 is C and E are incorrect. No. B and C are incorrect. Again no. B and E are incorrect. Now this is right. Options में हमें incorrect बताना है. So incorrect हमारे पास दो ही statements है, B and E. Next question is, this one is very interesting question. Let G be a directed graph whose vertex set is the set of numbers from 1 to 100. Okay, एक डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं जिसमें जो वर्टिसेस है वो 1 to 100 हो सकती हैं. There is an edge from a vertex I to vertex J if and only if either J equals to I plus 1 और J equals to 3 times of I. अब इसका क्या मतलब है? Now से आपके I की वैल्यू है 3. कोई भी वर्टेक्स ले सकते हैं. नाउ इस वर्टेक्स से एज कहां तक जाएगी? I plus 1, दैट मीन्स 4 तक. 3 plus 1 4, या फिर 3 टाइम्स ऑफ I, यानी कि 3 का 3 टाइम्स 9. सिर्फ ये दो एजेस जा सकती हैं. सेम वे अगर हम 4 से बात करें तो 4 से या तो 5 के पास जा सकती है या फिर 12 के पास, 4 into 3. और इसमें डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है. नाउ क्वेश्चन इज, the minimum number of edges in a path in G from vertex 1 to 100 is. Minimum number of edges find out करना है. Now अगर maximum पूछा होता तो आपका path क्या बनता? 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 up to 100. 99 edges आती. सिंपल. बट इसमें हमें बताना मिनिमम. मिनिमम कब होगा? जब हम 3 से मल्टीप्लाई करके आगे जाएंगे, राइट? नाउ इसमें हमें 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि 1 to 100 वर्टेक्स तक जाना है. 1 से स्टार्ट किया और 3 के मल्टीपल में हम आगे मूव करेंगे. सो 1, 3, 9, 27, 81. नाउ 81 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 100 से क्रॉस हो जाएगा, तब हम 3 का मल्टीपल नहीं ले सकते. अब हमें 1 इंक्रीमेंट करना है. 81 के बाद 82, देन 83, 84 अप टू 1111, ऐसे इंक्रीमेंट करके हम 100 तक जाएंगे. ओके. नाउ अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करते हैं, हमारी टोटल नंबर ऑफ एजेस आएंगी 23. आप काउंट कर सकते हो सारी एजेस को. पाथ हमारा बन गया 1 से 3, 3 to 9, 9 to 27, 81, 82, 83, 84, 85 अप टू 100. ओके. 81 से हमें फिर 1 का इंक्रीमेंट करके लेना है क्योंकि उसमें हम 3 का मल्टीपल नहीं ले सकते. नाउ देखो इसमें ज्यादा एजेस क्यों आ रही है? क्योंकि हमें 81 के बाद 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है. ठीक है. नाउ मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ जिससे हम मिनिमम नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट कर सकते हैं. रादर देन 1 से स्टार्ट करने के हम 100 से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करना शुरू करेंगे. ठीक है. 100 से हम जाएंगे 99 तक, 1 का डिक्रीमेंट. नाउ 99 हमें पता है 3 का मल्टीपल होता है. ओके, इसमें हम 3 का मल्टीपल वाला यूज करेंगे. सो यहाँ हम ले लेंगे 33. फिर 33 पे अगेन 3 का मल्टीपल यूज करेंगे 11. 11 किसी भी 3 का मल्टीपल नहीं है, सो इसमें हम 1 वाला इंक्रीमेंट लेंगे, j इक्वल्स टू I plus 1 वाला. 10 भी नहीं है 3 का मल्टीपल, अगेन 1 ले लेंगे. ओके. नाउ 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. इसमें अब हम 3 मल्टीपल वाला लेंगे जिसमें j इक्वल्स टू 3 into I. अगेन 3 भी हमारा मल्टीपल है, यहाँ हो जाएगा 1. नाउ देखो यू कैन सी ये आपका पाथ बन गया 1 से 100 तक. और इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So your right answer will be option 4, that is 7. Next question is, this one is very easy question. Let A equals to ABCDEFG. R एक relation given है. Which of the following property or properties are satisfied by R? Now just pause the video. ये आप अपने आप बहुत easily कर सकते हो, बहुत easy question है. First property है reflexive. Reflexive means जो भी हमें set given है उसके सारे elements same के साथ relation होना चाहिए. Like A, B, B, C, C, D, D, right? But इसमें हमें A, B, B तो given है, but C, C, D, D given नहीं है. E, F, F, G, G given है again. So C and D के ऊपर आपका reflexive नहीं है, right? This relation is not reflexive क्योंकि सारे आपके pairs होने चाहिए. Next है antisymmetric.
नाउ एंटोसिमेट्रिक क्या कहता है, इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए बी, दैट मीन्स ये ए बी आपका अगर रिलेशन में है एंड देयर इज ऑल्सो अ सेट बी ए, वो भी अगर रिलेशन में है, देन इन दैट केस दिस ए शुड बी इक्वल्स टू बी। चेक कर लेते हैं। ए का ए के साथ रिलेशन है तो दोनों इक्वल हैं, बी बी अगेन इक्वल, सी डी है तो क्या हमारे पास डी सी है, नो, सी जी पेयर के लिए जी सी नहीं है, डी जी के लिए जी डी नहीं है, ई ई एफ एफ जी जी। तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं ओके यस दिस रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक। लास्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स अगर रिलेशन में कोई भी पेयर है, अगर ए बी है रिलेशन में, देन देयर शुड बी बी ए। नाउ ए बी बी, नाउ सी डी के लिए आप देखो, सी डी आपको रिलेशन में दिया हुआ है बट डी सी रिलेशन में नहीं है, तभी सिमेट्रिक होता है। सी डी के लिए डी सी है, सी जी के लिए जी सी होना चाहिए, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ओनली ए रिफ्लेक्सिव, नो, ओनली सी सिमेट्रिक भी नहीं है, बोथ ए एंड बी अगेन नो, लास्ट ऑप्शन इज बी नॉट ए, दैट मीन्स the right answer will be option 4 and this is our last question। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप कर सकते हो। इसमें हमें दो रिलेशंस गिवन है R1 एंड R2 और यूनियन, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, ठीक है। सो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, जस्ट पॉज द वीडियो एंड देन जस्ट कंफर्म योर आंसर। फर्स्ट हमें दिया हुआ है यूनियन। यूनियन मीन्स सारे आप पेयर ले रहे हो, सो दिस इज वेरी सिंपल, ये 1 के साथ मैच करेगा। Next is R1 minus R2. R1 minus R2 means pairs of R1 that are not present in R2. Okay? So देखो R2 और R1 में कॉमन हमारा सिर्फ 1 1 है, ठीक है। बेसिकली हमें R1 की वो पेयर लेने हैं जो कॉमन नहीं है R1 R2 में, दैट इज 2 2 3 3, यही बनेगा। तो इसको मैच कर देंगे 4 के साथ। इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2, एक ही पेयर कॉमन है 1 1, उसके साथ मैच कर देंगे। R2 माइनस R1 मीन्स R2 के वो पेयर्स जो R1 में नहीं है। सो ये आपके बनेंगे 1 2 1 3 1 4, राइट। तो इसको हम इससे मैच कर देंगे, दिस विल बी योर करेक्ट मैचिंग एंड दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें अभी प्रोपोजिशनल लॉजिक्स एंड बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम आगे कवर करेंगे।